Jai Hind everyone. This is Bhaskar Mali and this is Maths period. Student, we have been studying chapter number 1 mathematical logic. In that we have seen that any sentence, if it is a declarative sentence, if it is assertive sentence, then that sentence is called as statement. If a sentence is interrogative, it means question, exclamatory, command, any order, any suggestion, or a open sentence. These sentences are not a statement. If a sentence is a statement, then that statement has particular truth value. According to our knowledge, we have to verify whether the statement is true or false. If a statement is true, then its truth value is T, which is in capital form. And if a sentence or a statement, yes, statement is a type of sentences, remember. So statement is false, then its truth value is F. So that we have studied, and yesterday we have seen some examples based on that. Again, few examples are there from exercise number 1.1. So let's see that examples. Question number 1, state which of the following are statements. Which of the following sentences are statements? Justify. We have to give the reason why they are statements, and if not, why they are not. Yes. If yes, then write their truth values. So let's start with this. 5 plus 4 is equals to 13. Is it statement? Yes, tell me. It is a statement. And its truth value. Now let's verify about truth value. Can you tell me what is the truth value of 5 plus 4 is equals to 13? What kind of truth value you are going to write here? 5 plus 4, sum is 9, which is equals to, yes, which is equals to 13, and it's not possible. So it is false. It is false. Therefore, its truth value is F. It's very simple. Whether it is statement, yes, if it is statement, then it is true or false, that we have to verify. If it is false, then its truth value is F. Now let's see for this. If I will put here x equals to 17, so 17 minus 3 equals to 14, but somebody will put here 5. So 5 minus 3 equals to 2 equals to 14. So it is open kind of sentence. So it is open sentence. Therefore it is not a statement. Justification दे दिया मैंने. Yes. Now number 3, close the door. Can you tell me whether it is a declarative sentence? No. Close the door, it is one kind of command. So it is command, and command is not statement. Remember, 0 is a complex number. Now 0 is a complex number? Yes, obviously, because we have studied all real numbers are complex number. So obviously 0 is a real number. So it is statement. Now let's talk about its truth value. It is one kind of statement. Now its truth value is, just now I said, its truth value is T. Now I omitted one sentence here. Which sentence? It is true. That sentence I have omitted, you have to write here. Understood? Now next, fifth one. Please get me a breakfast. What kind of sentence is this? It is one kind of request? Yes, it is one kind of request. So it is request. Therefore it is not a statement. See, one kind of chapter is this in which we have to write too much. Theoretical part is there, but it's very interesting. You require some logic for this. Yes, so 5 examples I have solved here. Now let's see the next 5 also.
congruent triangles are similar. Students, when two triangles are congruent, their corresponding angles are also congruent. And you know that similar triangles, टेस्ट है उनकी, कौन सी टेस्ट है? ए टेस्ट है. अगर किसी ट्रायंगल के दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रेंट है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं. और कॉन्ग्रेंट एंगल के तो तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट है. फॉर एग्जांपल, सपोज दिस इज द ट्रायंगल एबीसी and this is the triangle PQR. Both are congruent. Means this angle is congruent with this angle is congruent with this, and their including side is also congruent. So by which test they are congruent? By angle side angle test they are congruent. Now students, whether they are similar? Yes, by A test they are similar. Let me use the same symbol here. By A test they are similar. So every congruent triangle is similar, but every similar triangle is not congruent. Yes. So what we can write here? It is a statement already. I said it is statement which is true. Its truth value is T. ये एक स्टेटमेंट है जिसकी जो ट्रू है और जिसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी? टी आएगी. इट्स वेरी इजी. नाउ लेट्स सी. एक्स की वैल्यू चेंज होगी. एक्स की वैल्यू अगर 1 डाल दो 1 का स्क्वायर 1 आ जाता है. इसके लिए ट्रू हो रहा है. बट अगर मैं 2 का स्क्वायर लूँ तो इक्वल्स टू 4 आएगा. यस. तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे x है तो यहाँ पे x आ रहा है. यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1 आया. बट यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 आना चाहिए था. नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है. एक के लिए आ रहा है. मीन्स एक के लिए ट्रू, एक के लिए फॉल्स. दोनों वैल्यू कैसे आ सकती है? सो दिस इज open sentence. Yes, it is open sentence, and when it is open sentence, then it is not a statement. It's open statement. Sorry, it's open sentence. Therefore, it is not a statement. Now next, a quadratic equation cannot have more than 2 roots. Remember, this is the concept. When we are learning quadratic equation in 10th standard, we have seen that quadratic equation has only one value if discriminant is 0. If discriminant is 0, so it has equal value. It means it has only one root and real root. When the discriminant is greater than 1, then it has 2 roots. So दो से ज़्यादा root कभी नहीं होते quadratic equation में. So we can write here that quadratic equation cannot have more than 2 roots. It is one kind of statement because it is declaration. So it is statement which is true. So its truth value is T. I am writing in short, just you have to understand it. Yes. Now next, do you like mathematics? Somebody will say yes, somebody will say no. It is one kind of question, and question, it is not a statement. So it's a question. It's interrogative sentence. Therefore, it is not statement. Last but not least, 10 number. The sun sets in the west. Sun sets in the west. Can you tell me, beta? Is it true? No, it's false. But whether it is statement, yes, he has stated something. So it is statement which is true or false. West में आता है सूरज, उगता है नहीं, उगता है कि डूबता है? Yes, sets in the west. आप बताइए फिर, डूबता है पश्चिम में, करेक्ट है? Yes, it is the statement which is true. I thought it is rises. It is set, so it is correct. Which is true, therefore its truth value is T. Students, whatever we have studied yesterday, remember, same type of questions we have seen here. Now remaining 5 questions, that is homework for you. I will send photo of that questions that you have to solve. Okay, मैं वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 लिखूंगा वहाँ पे. एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 यही रहेगा कि आपको स्टेटमेंट है कि नहीं है वेरीफाई करना है. Yes, if it is statement, then write its truth value. If it is not statement, then justify why it is not a statement. So remember this thing you have to do. Now today what to do? Next topic we are going to study. So let's start. Okay, the topic is logical
connectives, simple and compound statement. Logical connectives, simple and compound statement. First of all, students, we will understand what is logical connectives. See, when we are talking, while talking, we are using many statement, many sentences, and sometimes we are joining many sentences together by using some words or some phrases. Like we are using words. I'm going to talk about logical connectives. We are using word and, or, if, then, if, and only if, or the next, not. So these are the words and, or, not, and these are the phrases that we are using to connect the two sentences. Now students, let's talk about the sentences. Sentences have two types. One is simple sentence and compound sentence. अभी सेंटेंसेस में सिंपल सेंटेंस होते हैं और कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, बट अपन यहाँ पे सेंटेंस का स्टडी नहीं करने वाले. हम यहाँ पे सिर्फ ऐसे सेंटेंस का स्टडी करेंगे जो सेंटेंसेस क्या है, स्टेटमेंट है. मीन्स वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली अ सेंटेंसेस विच आर डिक्लेरेटिव sentences. So we are going to study statements which are simple and compound statement. Now what is the difference between simple and compound statement? Simple और compound statement में क्या difference है देखते हैं. Suppose I will write this is, okay, let me take one example. Mumbai is the capital of Maharashtra. Okay, now here you tell me, can you split this statement into two statement? ये जो statement इसको दो statement में तुम बना सकते हो क्या? बना के दिखाओ मुझे. यहाँ पे full stop है, ये एक फुल सेंटेंस है, हाँ, जो एक तरह का स्टेटमेंट है. तो ये स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट निकाल के बताओ, पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल. सो इस तरह के स्टेटमेंट्स को कहा जाता है सिंपल स्टेटमेंट. व्हाट इट्स कॉल्ड? सिंपल स्टेटमेंट. नाउ लेट मी राइट डाउन नेक्स्ट. मुंबई is capital of Maharashtra. In short, I am writing MH. Yes. And Ahmedabad is capital of Gujarat. Full stop. Now this is statement, but you can see by using this whole statement, ये पूरा एक statement है, but ये पूरा statement का यूज करके मैं दो अलग अलग statement बना सकता हूँ कि नहीं? Yes, because Mumbai is a capital of MH, ये एक अलग statement बना सकता हूँ, and Ahmedabad is a capital of Gujarat, ये अलग तरह का मैं statement बना सकता हूँ. तो इसको ज्वाइन करने के लिए मैंने क्या यूज किया? एक कनेक्टिव यूज किया, एंड. तो इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं इनको क्या कहा जाता है? कंपाउंड स्टेटमेंट कहा जाता है. अब सर ये पूछा जाएगा क्या? नहीं भाई, ये नहीं पूछने वाले. सो सर क्या पूछने वाले हो तो सिखाइए. ये पूरा थियोरेटिकल पढ़ के कोई फायदा नहीं है. अब क्या इंपॉर्टेंट है वो सीखेंगे. आपको सीखना है लॉजिकल कनेक्टिव्स, एंड, और, इफ, देन, इफ एंड ओनली इफ एंड नॉट. अब स्टूडेंट्स हमने देखा कि जब अगर कोई सिंपल स्टेटमेंट है तो उसकी हमको ट्रुथ वैल्यू लिखते आती है. सपोज मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ये मैंने बोल दिया. अब बताइए ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है, आप बोल दोगे. नाउ हियर आई एम राइटिंग मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र एंड अहमदाबाद इज द कैपिटल ऑफ गुजरात. अब बताइए मैं ट्रू बोल रहा हूँ कि फॉल्स बोल रहा हूँ? यस, दोनों सेंटेंस करेक्ट है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? ट्रू बोल रहा हूँ. अब देखिए मैं चेंज कर रहा हूँ. Mumbai is the capital of Maharashtra and Ahmedabad is the capital of Madhya Pradesh. Now tell me whether I am talking true or false. Yes, this creates confusion कि आधा मैं सच बोल रहा हूँ, आधा मैं झूठ बोल रहा हूँ. So इस तरह के स्टेटमेंट्स जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसके लिए ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? सिंपल के लिए तो हमने सीख लिया कि सिंपल के लिए भाई हम समझ सकते हैं कि ट्रू है कि फॉल्स है, सिंपल. बट अगर दो स्टेटमेंट ज्वाइन है, एक आदमी दो स्टेटमेंट ज्वाइन करके बोल रहा है, एंड की तरह, और का यूज करके, इफ का यूज करके, या फिर इफ एंड ओनली इफ का, या फिर नॉट का यूज करके, तो मुझे तो ये नहीं समझेगा ना कि ये ट्रू बोल रहा है कि फॉल्स बोल रहा है, क्योंकि उसका आधा स्टेटमेंट ट्रू है, आधा स्टेटमेंट फॉल्स है.
तो इसमें डिफिकल्टीज है। मैं ऐसे थोड़ी बोल रही हूँ पूरा झूठा है, नहीं। तो मुझे पूरे का ओवरऑल स्टेटमेंट, फुल स्टेटमेंट का क्या ट्रूथ वैल्यू लिख पाओगे, ये हमें आज सीखना है। सो लेट्स सी द टाइप्स ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है, उसको कैसे लिखा जाएगा, उसकी ट्रूथ वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे, ये 5 टाइप है। अभी आपने देखा कि एंड, और, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ, और नॉट, ये 5 टाइप है। और ये 5 टाइप के एग्जांपल्स हम देखेंगे, इनके टाइप्स देखेंगे, यस, जो लॉजिकल कनेक्टिव्स इनके टाइप्स देखेंगे, और इनकी ट्रूथ वैल्यू कैसे फाइंड किया जाएगी, दैट वी आर गोइंग टू सी। सो लेट्स सी। अभी अगर टेक्स्ट बुक के हिसाब से चलेंगे तो बहुत आदमी कंफ्यूज हो जाता है, बट अभी अभी हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, तभी तो ये समझेगा कि भाई बोर्ड में किस तरह के एग्जांपल्स आएंगे, उस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। बोर्ड में क्या होता है, ये जो बुक होता है ये बहुत थ्योरेटिकल टाइप में पढ़ाया जाता है, तो कभी कभी इसमें से आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट अगर आप ये समझ लेते हो तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है चैप्टर, में यही बोल रहा हूँ। पहला टाइप है कनेक्टिव का, पहला टाइप एंड है, बट इसको एंड को क्या कहा जाता है, कंजंक्शन। व्हाट इट्स कॉल्ड, कंजंक्शन। अब कंजंक्शन कैसे होगा, अभी सर आप लोग हमेशा सेंटेंस या फिर स्टेटमेंट ही यूज करोगे क्या, हमेशा स्टेटमेंट यूज करने वाले क्या, नहीं, मैं स्टेटमेंट नहीं यूज करूंगा। मैं क्या करूंगा कि मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिखूंगा, बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्टेटमेंट आई विल कंसिडर पी क्यू आर एस आर स्टेटमेंट फॉर्म में। मैंने कुछ लेटर्स कंसिडर कर ले, मैथ्स में हम लेटर ही कंसिडर करते हैं कि पी एक स्टेटमेंट है, क्यू भी एक स्टेटमेंट है, आर भी एक स्टेटमेंट है, एस भी एक स्टेटमेंट है। फॉर एग्जांपल पी को मैंने स्टेटमेंट कंसिडर किया, पी क्या रहेगा स्टेटमेंट, मुंबई इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। और दूसरा स्टेटमेंट मेरा क्या था ज्वाइन में, बताइए, क्यू क्या रहेगा कि अहमदाबाद, अहमदाबाद, यस, करेक्ट द स्पेलिंग, आई डोंट नो, इज द कैपिटल of Gujarat, but I did it by mistake, MP. So now I consider this statement as P, I consider this statement as Q. Q करते हैं, आप बोलोगे सर इतना क्यों, भाई मैथ्स इजी करने के लिए हमेशा हम किसी बड़ी चीज को छोटा कंसिडर करते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, पहले स्टेटमेंट को P कंसिडर किया, दूसरे स्टेटमेंट को Q कंसिडर किया। अब इनको किससे ज्वाइन किया था, एंड से। तो ये स्टेटमेंट मैं कैसे लिखूंगा, एंड के लिए क्या सिंबल है, ये सिंबल है, मैथ्स में याद रखिए, इन मैथमेटिकल लॉजिक एंड कैसे यूज होगा, उल्टा भी। सो दिस, वो जो पूरा स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट था, मुंबई इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र एंड अहमदाबाद, अहमदाबाद, यस इट गेट कंफ्यूज, इज कैपिटल ऑफ एमपी। ये मैंने गलती से किया है, मीन्स मैंने उसको फॉल्स लिखा है डिलिबरेटली। अब इसको मुझे मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना है। अभी मैंने ये पहले सेंटेंस को पी कंसिडर किया, दूसरे सेंटेंस को मैंने क्यू कंसिडर किया, यस। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है विच इज पी, सेकेंड स्टेटमेंट विच इज क्यू, एंड दिस एंड हैज पर्टिकुलर सिंबल दिस। सो हाउ आई विल राइट दिस, आई विल राइट लाइक दिस, पी क्यू, एंड दिस सिंबल इज कॉल्ड एज conjunction. So it is P conjunction Q. Remember. तो ये समझ में आ गया कि मुझे अगर एंड में लिखा हुआ 2 सेंटेंस है तो मुझे ऐसे लिखना है। अब बात करेंगे ट्रूथ वैल्यूज की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एक टेबल होता है। अब हमें 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स की बात करनी है, तो 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स का हमारे पास एक टेबल रहेगा, उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। अब कंडीशन क्या रहेगी, अगर कंजंक्शन है तो ये कंडीशन आपको याद कर लेनी है। इसके लिए क्या कंडीशन याद करनी है, इसके लिए एक फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद करना है, इफ बोथ ट्रू देन ट्रू। बस ये एक फॉर्मूला है जो आपको बुक में शायद मिले ना मिले, ये एक सिंपल फॉर्मूला है कंजंक्शन के लिए। क्या फॉर्मूला है, अगर दोनों ट्रू है तो ही पूरा सेंटेंस ट्रू है, नहीं तो सारा सेंटेंस क्या है, फॉल्स है। अब बताइए, ये दोनों सेंटेंस, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, नहीं, एक स्टेटमेंट ट्रू है, एक स्टेटमेंट फॉल्स है, दोनों ट्रू नहीं है, तो ये पूरा जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कंडीशन क्या रहेगी कि अगर एंड आता है तो एंड के लिए क्या चाहिए, ये गुजरात, ये जो मुंबई है कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र है, और अहमदाबाद जो है कैपिटल ऑफ एमपी है, तो मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, दैट इज फॉल्स। ये पूरा स्टेटमेंट मेरा फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज मैंने एक सेंटेंस गलत बोल दिया। तो कंडीशन क्या रहेगी, बोथ ट्रू देन ट्रू, दोनों ट्रू है एंड के लिए
तो ट्रू, नहीं तो फिर फॉल्स। अभी कैसे चेक करना पड़ेगा, हमको एक टेबल बनाना पड़ेगा। ये नया है आपके लिए इसलिए बहुत दिमाग पे से जा सकता है, बट आपको इसको समझ लेना पड़ेगा। देखिए पी स्टेटमेंट है, पी स्टेटमेंट समझ लीजिए ट्रू है, और क्यू स्टेटमेंट भी क्या है उस टाइम ट्रू है, दोनों ट्रू है। यस, नेक्स्ट पी स्टेटमेंट इज ट्रू, क्यू स्टेटमेंट फॉल्स है। समझ लीजिए पी स्टेटमेंट फॉल्स है तो क्यू स्टेटमेंट ट्रू है, और समझ लीजिए दोनों फॉल्स है। तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी, पी और क्यू की क्या वैल्यूज आएंगी। तो कंडीशन क्या है, दोनों अगर ट्रू है तो ट्रू लिखो। दोनों ट्रू कहाँ पे भाई, देखो कहाँ पे ट्रू है, दोनों यहाँ पे ट्रू है, सो इसकी वैल्यू ट्रू आएगी। बाकी सारे क्या है, बाकी सारे स्टेटमेंट क्या आ जाएंगे, फॉल्स आ जाएंगे। सो ये टेबल आपको बना लेना है। ओके, अब इसके आगे का हम कल देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज देखिए अभी ये काम में आएगा हमारे, जहाँ जहाँ पे एंड वाले स्टेटमेंट आएंगे तो हम क्या करेंगे भाई, दोनों ट्रू है तो वो पूरे स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। अब बताइए, हमने ये एग्जांपल देखा तो इसमें एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो क्या हो गया, पी की वैल्यू क्या है, ट्रू है कंजंक्शन, क्यू की वैल्यू क्या है, फॉल्स है। बोलो ट्रू और फॉल्स, आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो इसका आंसर क्या आया, फॉल्स। ये लॉजिकल इक्वेशन, हाँ फॉल्स। तो इसकी पूरा सेंटेंस क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब आप बोलोगे सर इसका कैसे करेंगे, इसको कैसे सीखेंगे। देखो भाई, पहले तो हमें ये पूरे 5 के 5 टॉपिक पढ़ लेने पड़ेंगे, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे पांचों पे। सो वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट 4 टॉपिक्स टुमारो। चारों टॉपिक कल पढ़ लेंगे, उस पर एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। स्टार्टिंग है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, बट डिफ़िकल्ट ऐसा दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं होती अगर आप उसके साथ फैमिलियर ना होते। तो फैमिलियर हो जाइए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।